Sir. Hello everyone, can you see the screen? Hello. हाँ बोलो। सर वो असाइनमेंट ऑफलाइन वालों को भी लिखनी की है क्या? अरे सबको लिखनी है, ऐसे थोड़ी ना है। असाइनमेंट इज द सर असाइनमेंट काय है? लिसन, वो ट्यूटोरियल है आपका, ट्यूटोरियल है, सेकंड ट्यूटोरियल। इट इज ऑलरेडी पोस्टेड ऑन अ गूगल क्लासरूम। जो सेकंड यूनिट है ना फोरियर सीरीज, उसके एमसीक्यूज है अराउंड 57 कुछ एमसीक्यूज है दैट यू आर सपोज्ड टू सॉल्व, एंड दैट विल बी फॉर एवरीवन, ऑफलाइन एज वेल एज फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट. ओके सर त्याची डेडलाईन काय एमसीक्यू सबमिट करण्याची? संडे 12. सर आम्हाला आप कळले थोडी वाढून देतात का, कारण का आम्ही ऑफलाईन वाले. अरे मैंने वेडनेसडे को डाला है. सर पण आम्ही ऑफलाईन होतो त्यामुळे आम्हाला काय माहिती. ठीक है आप करो, संडे को मैं चेक करता हूँ कितने लोगों का आता है. ऑलरेडी वो सभी एमसीक्यू भी सॉल्व किए हमने, उसमें से आई थिंक 33 एमसीक्यू सॉल्व किए ना. सर पण आम्ही ऑफलाईन वाले आहेत, आम्हाला काय माहितीच नाही सर. तो तुम्ही ऑनलाइन कसे आलात? आजपासून ऑनलाईन यायला लागलोय, ते सरांपेक्षा तुमचं चांगलं समजतं नाही. मग तिकडे ऑफलाइन नाही करत का तुम्ही आता लेक्चर? आजच बसलोय, ऑफलाईन नाही करत, फक्त पीपीएसचं ऑफलाईन करतो, कारण का पीपीएसचा प्रॉब्लेम येतो. बघूया. ठीक आहे आपण ते एक्सटेंड अलाउड करू आहे ना तसं सर? द डेट. अलाउड आहे ना तसं टेंशन नका ऑनलाईन घेऊ. करायला? पण तुम्ही सॉल्व करायला चालू करा. हाँ ठीक है सर. डेट एक्सटेंड कर दो. Okay, listen, from today we are going to start with the next part, that is variable to be treated as constant. I think in the last lecture what we have seen how to find out the value of n, I guess, right? That kind of problem we have seen in the last lecture. Yes, sir. Yes, sir. Now today we are going to see the another kind of problem which is called as variable to be treated as constant. Variable to be treated as constant. Okay, now all of you listen here. See, generally when you write down y is equal to f of ab, okay, what do you mean by dabba a dabba y by dabba a? याचा इसका मतलब क्या है? किससे डिफरेंशिएट करोगे? With respect to a And what about v? constant. Yeah. तो here हमें मालूम है We will treat as a constant. या तो a से डिफरेंशिएट करना है, we know it, and we know that कि b को कांस्टेंट रखना है, that is for sure, right? तो यहाँ पे when I write down dabba y by dabba b, I know that कि मुझे a को कांस्टेंट रखना ही है. तो रखना ही है, इसलिए यहाँ पे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है वापिस कि इस b को कांस्टेंट रखो या यहाँ पे a को कांस्टेंट रखो. No need to write it down. Okay, but sometimes there are problems where the variable is depending on more than one variable. Okay, and sometimes it has been mentioned, it is necessary to mention that which variable has to be constant. For example, listen here. If I take, all of you listen here, x is equal to r cos theta, and if I take y is equal to r sin theta. So from this I can get one more equation, that x square plus, what is x square plus y square? What will be x square plus y square? R square cos square. 2r square. Is it r square cos square theta plus r square sin square theta? So can I say, if I take r square common, it will be r square into 1? Is it correct? Yes. Yes, sir. Right. Yes, sir. Now suppose, listen here, if I ask you to find out dabba r by dabba x or dabba r by dabba y, suppose if I tell you this, find out dabba r by dabba y, can you tell me which variable you will be treated as constant? Theta. Theta. Why not x? Why not x? Theta and x.
ठीक, and theta both. यहाँ पे अगर देखोगे आप तो आप y को r को sin थीटा बाय y लिख सकते हो। यहाँ पे अगर आप r को देखोगे तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। So can I say r is depending on y and theta? Y is depending on r is depending on x and y also, na? Are you Sir, getting r me? equals to y by sin theta येणार ना sir? Sorry, it will be y by sin theta. Okay, what I'm trying to tell you is वो depend है दोनों पे, y पे भी depend है, theta पे भी depend है, यहाँ पे x and y पे. But see, when I say dabba r by dabba y, okay, you have to decide whether you have to keep this theta constant or you have to keep this x constant, because this r is depending on x, y as well as on theta. Okay, so if this kind of problems are there, then there is a problem. So in this way, in this kind of problems, we are supposed to mention that which variable to be treated as constant. So here, when I write down a variable theta here, listen here, when I outside this bracket, when I write down theta, this means this variable will be treated as constant. Are you getting the meaning of this? When I write down a variable outside the bracket, the meaning of this is differentiate this r with respect to y, treating theta constant. When I write down dabba r by dabba y, treating x constant, in this case, I'm going to treat x as constant. Now, can you tell me here, which equation should I use? Should I use this equation or should I use this equation for finding dabba r by dabba y? First equation. First equation, obviously, First to find equation. out this dabba r by dabba y treating theta constant, I should have an equation in terms of r, y and theta, and that is nothing but this equation r, y and theta, right? Similarly, when you differentiate r with respect to y treating x constant, you should have an equation which contains r, y and x, and this is that equation. That means to find out this derivative, I'm going to use this equation, and to find out this derivative, I'm going to use this equation. I hope you are getting the difference, and I hope you're getting what is the need of variable to be treated as constant. Okay, so in this kind of problem, we are supposed to mention that which variable to be treated as constant. Okay, so listen here. I'll just write down what is the meaning of this first of all. So suppose, for example, if I write down dabba z by dabba x, treating y constant. So the meaning of this is differentiate before that express z in terms of x and y, and then differentiate z with respect to x, treating y constant. Okay, I repeat, listen here, two things are important. To find out this kind of, or to solve this kind of problems, okay, first of all, whatever dependent variable you are having, that is z, you have to express that thing first of all in terms of x and y. Okay, that is the first thing, express z in terms of x and y. That's the first thing. Second thing, once you have an equation in terms of z, x and y, then you differentiate z with respect to x, treating whatever variable which is outside the bracket, that compulsory, that variable we are going to treat it as constant. Are you getting the idea, everyone? अर्थ कळाला का सगळ्यांना याचा? याचा अर्थ असा की पहिल्यांदा z ला एक्सप्रेस करायचं x आणि y मध्ये, and the second thing, नंतर z ला डिफरेंशिएट करायचं with respect to x, treating y as constant. I hope it is clear to all. सबको समझ में आया? Yes, sir. Yeah. Now, with the note of this, we'll just see some example. A simple example we will see. Okay. That will give you the better idea. So it is very simple. So what kind of example can be asked on this?
suppose if u is equal to ax plus by, v is equal to bx minus ay, find the value of dabba u by dabba x treating y constant into, write down the question with me, all of you, write down that sorry, so we are going to have here dabba x by dabba u into dabba y by dabba v x constant into dabba v by dabba y treating u constant. I hope you have written this part. ये हो गया सबका? Yes, sir. Everyone, Mozilla, Audi, Chrome, everyone done with this? Done? Should I scroll down? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, Listen. sir. Yeah. Okay. Listen now. ध्यान दो. Now, if you look at this u, if you look at the first equation u, what do you comment on u? u पे क्या comment करोगे आप? u is a function of what? X and Y. X and y. Can I also say x is a function of y and u? Can I also say y is a function of u and x from this equation? Because Yes, sir. you can Yes, rearrange Yes, them sir. and you can write down this as ax is equal to by minus u upon, then if you divide by a, you are going to have x in terms of y and u. Sir, So U minus BY. yeah. So from this equation, you can say that a and b are constant. A and b are constant. So you can say that this is the equation which contains u, x and y, right? What is the second equation? Second equation is v is equal to bx minus ay. That means here, listen here, these two equation will help you. अगर आपको u का derivative निकालना है with respect to x and y, that you can find out. If you want to find out derivative of x with respect to u and y, that you can find out. If you want to find out derivative of y with respect to x or u, that you can find out. Okay. So any variable with respect to remaining two, that you can do over here. Similarly for the second equation. Okay. But listen, क्या पूछा है वो check करना है आपको. If you look at the first equation, okay, ध्यान दो, everyone, all of you listen here carefully. dabba u by dabba x treating y constant. तो जब भी आपको ये इक्वेशन निकालना है, आपको क्या चाहिए? ऊपर वाला डिपेंडेंट वेरिएबल, नीचे वाले जो दो वेरिएबल्स है ना, उसके टर्म्स में चाहिए. तो यू नीड अ इक्वेशन, आपके पास ऐसा एक इक्वेशन होना चाहिए जिसमें u होना चाहिए, x होना चाहिए एंड y होना चाहिए. नॉट नेसेसरीली u x साइड, x and y on one side, not necessarily. What I'm saying, you just need a equation which contains u, x and y. It will be better if you have u on one side and x and y on one side. Do we have this kind of equation जिसमें u, x and y है? Yes. Yes, है या sir. नहीं है? First equation. पहला इक्वेशन है, देखो u, x, y है ना इसमें, राइट? Yes, sir. So can I find Yes, out dabba sir. u by dabba y? तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x treating y constant क्या होगा? It will be simply a into 1 plus 0 Plus because y constant 0. है. y भी constant और c b भी constant, तो 0 हो जाएगा ना उसका डेरिवेटिव, Yes, sir. राइट? तो can I say dabba u by dabba x treating y constant will be simply a.
इज इट क्लियर एवरीवन? नो डाउट? हे कळालं का सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. गुड. तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज ऑलरेडी यू एक्स एंड वाई में था. ओके, नाउ विल थिंक अबाउट द सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म क्या है? देखो सेकेंड टर्म है आपका डाबा एक्स बाय डाबा यू ट्रीटिंग वी कांस्टेंट. नाउ इसके लिए क्या चाहिए? लिसन, ध्यान दो. ऊपर वाला डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से दो वेरिएबल में चाहिए हमें? एक्स, U or V. u and v. Okay, you need x in terms of u and v. आपके पास ऐसा कोई इक्वेशन है क्या जिसमें x है, u है and v है? राइट नाउ डू यू हैव अ इक्वेशन which contains No, sir. only x, u and v? No, ये sir. वेरिएबल होने चाहिए. ऐसा ही है क्या? नहीं है हमारे पास. ओके, बट हम ऐसे ला सकते हैं क्या? तो ला सकते हैं. ओके, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ये इक्वेशन एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, ओके, मुझे क्या बनाना है? अभी मुझे ऐसा एक इक्वेशन बनाना है जिसमें x हो, u हो एंड v हो. कौन सा नहीं होना चाहिए ऐसा लग रहा है मुझे? Y. y Why? not. Why? तो दिस इज द आइडिया. ये ध्यान, ये आपका अगर समझ में आया ना तो इट इज यू आर हाफ वे थ्रू. तो दैट मीन्स यहाँ पे बेसिकली चार वेरिएबल्स है, x, u, v एंड y. But right now I need an equation in terms of x, y and u, v only. That means I don't want the fourth variable y. तो मुझे कुछ भी करके क्या करना है? ये इसमें से, इन दो इक्वेशन में से उस y को गायब करना है. ओके, तो आपने जो 9th स्टैंडर्ड में किया था, डू यू रिमेम्बर? इलिमिनेशन. Yes, sir. Yes, Sir, sir. Y डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे हम. ये इक्वेशन sir. जो है हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे. फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ. तो शुड आई मल्टीप्लाई? कैन आई डू समथिंग लाइक दिस? मुझे क्या करना है? इस y को एलिमिनेट करना है. तो ऑलरेडी देखो यहाँ पे प्लस माइनस साइन है, बट कोएफिशिएंट दोनों का सेम है क्या? No, sir. नहीं. तो क्या No, करना? sir. क्या करते हैं हम? 9th स्टैंडर्ड में किया था, डू यू रिमेम्बर? इसको मल्टीप्लाई a से मल्टीप्लाई करो, इसको b से मल्टीप्लाई करो. Yes, sir. इज इट राइट? इज इट? एंड उसको ऐड कर दो फिर. ओके, तो कैन आई से दिस पार्ट, वो जो फर्स्ट इक्वेशन है, शुड आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1 और शुड आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2? So what I'm going to do, I'm going to multiply equation 1 by a and equation 2 by a. So multiply equation 1 by a plus equation 2 by b. So what you will have when you multiply this? Are you going to get au is equal to a square x plus aby? When you multiply the second equation by b, are you going to get bv is equal to b square x minus aby? Is it correct? Check out. Yes, sir. Yes, sir. तो जब when you add this, जब ये ऐड करोगे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी ना? Is it correct? क्या बचेगा मेरे पास? I am going to have au plus bv is equal to a square plus b square, okay, into x. x कॉमन लिया मैंने. Can I say like this? Yes, sir. Okay. Yes, Yes, sir. From this equation, can I say x is equal to au plus bv upon a square plus b square? Is it correct? Yes, sir. Is it correct? yes, sir. तो am I getting one equation? मुझे ऐसा एक इक्वेशन मिल रहा है क्या मुझे? तो कैन आई से आई एम गेटिंग वन इक्वेशन Yes, sir. जिसमें मेरे पास x है, u है एंड v है. तो मैंने क्या किया? y को एलिमिनेट कर दिया. आर यू गेटिंग? एंड नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव. देयरफॉर डाबा x by डाबा u, y with respect to u डिफरेंशिएशन करना है, v को कांस्टेंट रखना है. कैन यू टेल मी द डेरिवेटिव ऑफ दिस? सी, ये 1 upon a square plus b square तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही चला जाएगा. a square plus b square. तो इसका डेरिवेटिव u से और v से v कांस्टेंट क्या होगा? इज इट a सिंपली? A. a into 1 A होगा, sir. plus 0.
Is it simply A? Simply A upon A square plus B square? yes sir. कड़ाला का है Yes, देखो sir. ये फर्स्ट टर्म मिला है हमें, ये फर्स्ट मिला है, ये हमें सेकेंड मिला, राइट? तर अभी थर्ड, हाँ बोलो. तर ते आपण म्हणजे आता इथं y ची व्हॅल्यू पुट करू पण शकतो ना फर्स्ट इक्वेशन मध्ये काढून, पण चालेल, दॅट ऑल्सो यू कॅन डू. पण ते हार्ड होईल का? हा ते हार्ड होईल. का होईल माहिती का? लिसन व्हॉट ही इज सेइंग. इथे काय करू शकतो आपण, हे जे इक्वेशन आहे u इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, व्हाट वी कैन डू, इसमें से आप y की इक्वेशन निकाल सकते हो ना. y का इक्वेशन होगा आपका u माइनस ए एक्स अपॉन बी, वाई की वैल्यू निकाल सकते हो इसमें से, और ये वैल्यू जो है वो दूसरे वाले इक्वेशन में डाल दो यहाँ पे, ऑटोमेटिकली y एलिमिनेट हो जाए. दैट ऑल्सो यू कैन डू, वैसे भी कर सकते हो, आपको सेम ही मिलने वाला है. थोड़ा यहाँ पे लगता है मुझे डिफिकल्ट हो जाएगा. बट आर यू गेटिंग दैट आयडिया ऑल्सो? तसं पण करू शकतो पण आपण. इज इट ओके? ओके. What is the third term? Dabba y by dabba v x. थर्ड टर्म जो हमें फाइंड आउट करना है, dabba क्या था वो, dabba y क्या, dabba y by dabba v. तो डू वी हैव, इसके लिए क्या चाहिए हमें, y v और x का इक्वेशन चाहिए. ये क्या देखो, y v और x, y v x वाला इक्वेशन है हमारे पास, ये या नहीं है पहले चेक करना है, नहीं होगा तो बनाना पड़ेगा. डू वी हैव? Yes, sir. Yes, है sir. ना, ये देखो ये Equation number second. इसमें y है, सेकंड इक्वेशन. x है और v है, तो बनाने की जरूरत नहीं है कुछ, डायरेक्टली इसको ही डिफरेंशिएट कर दो. ओके, ओनली द थिंग इसको थोड़ा लिखेंगे प्रॉपर्ली. तो बाय इक्वेशन 2 ध्यान दो, बाय इक्वेशन 2 बाय 2 कैन आई से, y चाहिए ना मुझे एक साइड, तो कैन आई से क्या वो bx माइनस ay, अगर मैंने ए वाई वाली टर्म ही उधर ले ली, तो इज इट ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स माइनस वी, फ्रॉम दिस कैन आई से वाई इज इक्वल टू बी एक्स माइनस वी अपॉन ए. इज इट राइट? Yes, sir. राइट. तो हमें क्या मिला, y मिला. देखो ये वाला y डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ x एंड v मिला ना, y इन टर्म्स ऑफ x एंड v. नाउ इसको डिफरेंशिएट करो. कैन यू टेल मी द डेरिवेटिव ऑफ दिस? सिंपल होगा अभी. सो डेरिवेटिव ऑफ dabba y by dabba v, One by x कांस्टेंट या 1 अपॉन a तो बाहर कांस्टेंट आ जाएगा, x कांस्टेंट है तो फर्स्ट टर्म 0 माइनस -1 बाय माइनस, तो इज इट माइनस 1 बाय a? यस इज सर. इट माइनस 1 बाय a? तो ये आ गई हमारी थर्ड वैल्यू. और एक है ना कुछ तो, अभी हमें फाइंड आउट करना है dabba v with respect to y treating u constant. So do we have a equation in terms of v, y and u? ऐसा इक्वेशन है क्या हमारे पास कोई स्टार्टिंग में? क्या करना पड़ेगा फिर? v y तो है नहीं हमारे पास. What should we do? कैसे लाएंगे? मींस कौन सा वेरिएबल नहीं चाहिए बताओ? जब Sir, x नहीं चाहिए हमें. x वेरिएबल नहीं चाहिए हमें, तो शुड आई डू, फर्स्ट वाले इक्वेशन को हम b से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड सेकेंड वाले इक्वेशन को हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो इफ आई डू दैट, अगर मैंने फर्स्ट वाले इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम आई गोइंग टू गेट bu इज इक्वल टू ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई, एंड इसको अगर a से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये मिलेगा ए बी इज इक्वल टू ए बी एक्स माइनस, ऐसे किया a से ना, ए स्क्वायर
इज इट करेक्ट? बट हम ये सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, ध्यान दो, वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो विच टर्म विल गेट कैंसल आउट? ये वाली टर्म। AB. Am I going to get BU minus AV? सर आपने कैसे पता चलेगा कौन से टर्म को कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करना है? वो तो देख कोएफिशिएंट सेम कर रहे हैं हम। देखो अभी फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया 2x plus 3y is equal to 4 and 4x plus 2y is equal to 6। मैंने आपको बोला कि इस y को एलिमिनेट करो, तो ये एलिमिनेट कब होगा? ये सपोज ये माइनस है, पकड़ के चलो और सिंपल कर देता हूँ, ये माइनस है, तो इसका कोएफिशिएंट सेम करने की कोशिश करोगे ना y की, तो इसको 3 इसको 2 से और यस इसको सर। तो ये जब मल्टीप्लाई करो ये 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और फिर कैंसिल हो जाएगा ना। आर यू गेटिंग? हाँ यस सर, अंडरस्टूड। वैसे ही कर रहे हैं हम, व्हाट वी आर डूइंग, जिसको कैंसिल करना है उसका कोएफिशिएंट सेम बना रहे, नथिंग एल्स। आर यू गेटिंग इट? यस ये सर। क्या होगा? b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, y कांस्टेंट आ जाए, कॉमन आ जाए, तो कैन आई से फ्रॉम दिस y इज इक्वल टू bu minus ab upon b square plus a square। now I can find out, I can easily find out this value। तो क्या होगा? ये 1 upon a square plus b square तो कॉमन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, नहीं क्या चाहिए था हमें, y नहीं चाहिए क्या? तर आपल्याला नो परत सर, थोडं हे आपल्याला करावं v लागेल, पाहिजे. राइट। इन टर्म्स ऑफ v पाहिजे आपल्याला ते। तो इसको v के टर्म्स में लिखोगे, ठीक है? तो कैन आई राइट डाउन, ये हमारा इक्वेशन ऐसे मिला, bu माइनस ए वी इज इक्वल टू, डायरेक्टली किया तो भी चलेगा, मैं थोड़ा एक्सप्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, हमें v चाहिए ना, तो ये टर्म उधर लेके जाओ, तो कैन आई राइट डाउन दिस एज bu माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y इज इक्वल टू ए वी, इज इट? From this can I say v is equal to b by au minus b square plus a square upon a y, a से डिवाइड कर दिया मैंने, इज इट ओके? अभी इसका डेरिवेटिव बता सकते हो मुझे? Yes, sir. डाबा v by डाबा y ट्रीटिंग u कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ? 0. 0 है ना, v by a। तो इसमें सभी कांस्टेंट है, u कांस्टेंट, a कांस्टेंट, b कांस्टेंट, तो ये 0 आ जाएगा, और इसका क्या होगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y? Is it minus a square plus b square upon a square upon a? यस सर। Yes, sir. Is it minus a square plus b square? और because y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा ना, तो दिस इज माय फोर्थ वैल्यू, सभी वैल्यूज मिल गए, ब्रैकेट में आएगा ना सर? प्रोडक्ट ऑफ दैट 4. कैन आई से डाबा u by डाबा x getting y constant, डाबा x by डाबा u treating v constant into डाबा y by डाबा v treating x constant into डाबा v by डाबा y treating u constant is equal to, पहले टर्म क्या आई थी, फर्स्ट वाली टर्म, इज इट a? पहला आंसर a आया था, देखो, दूसरा a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तीसरा -1 by a. -1 by a, और चौथा अभी निकाला हमने, ये -a square plus b square upon माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो ये a कैंसिल होगा, ये a कैंसिल होगा, ये a स्क्वायर b स्क्वायर भी कैंसिल होगा, व्हाट इज द आंसर फाइनली? सर 1। 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, plus 1. your final answer will be 1। are you getting the idea? see ये 9th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, तो only the thing is it bit long, क्योंकि आपको वो सभी डेरिवेटिव निकालने पड़े, बाकी इसमें कुछ लॉजिकल है नहीं, बस कोएफिशिएंट सेम करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, and then express one variable with the in terms of other, and then you simply differentiate it।
चलो स्टार्ट राइटिंग. Write down this. सर लेक्चर होने के बाद आप ये पीडीएफ हमको शेयर करेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे. क्या क्या? सर सॉरी. लेक्चर होने के बाद आप इसकी जो पीडीएफ हमको सेंड करेंगे क्या? मैं सेंड करता हूँ ना एवरीडे. नहीं सर, पिछले लेक्चर की शायद से आपने मोजिला ग्रुप पे भेजी नहीं है. ओके 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 सॉरी यार, मोजिला पे नहीं किया था मैंने. आई डू इट. मोजिला पे करता हूँ. मैंने एक्चुअली मैं गूगल क्लासरूम पे डालता हूँ. आई विल डू इट, डोंट वरी. ओके सर. और सर आपकी रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ पे मिलेंगे सर? रिकॉर्डिंग वीडियो जो है अभी वो प्रॉब्लम क्या हो रहा है. यू आर फ्रॉम विच डिवीजन? आई एम फ्रॉम मोजिला सर. या बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रहा है. वी आर देयर आर 3 डिविजन्स राइट, ऑडी, मोजिला एंड क्रोम. बट द थिंग इज किसी एक ही लेक्चर पे हम असाइन करते हैं ना, लाइक क्रोम या ऑडी पे अभी फ़िलहाल में. तो जिस पे मैं लेक्चर शेड्यूल करता हूँ उनके फाइल में वो रिकॉर्डिंग जाता है राइट. फॉर एग्जांपल सपोज मैंने आज का लेक्चर ऑडी में किया तो ऑडी के फाइल में वो रिकॉर्डिंग जाती है. क्रोम पे किया तो क्रोम के फाइल में जाती है. तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम. एक्चुअली मोजिला पे माइक्रोसॉफ्ट टीम पे जाएगा ही नहीं बिकॉज आई एम नॉट currently on the Mozilla Microsoft team. But what we can do is क्या कर सकते हैं. मैं गूगल क्लासरूम पे वो चाहिए तो रिकॉर्डिंग जितने भी मिल रहे हैं सभी आई पोस्ट इट. ओके सर. सर कल का अपलोड करो ना रिकॉर्डिंग. क्या क्या? कल का भी अपलोड करो, वो भी नहीं मिल रहा. कल का एक्चुअली क्रोम पे नहीं दिखेगा लेकिन ऑडी वाले को दिखेगा. देखो क्योंकि मैंने वहाँ पे शेड्यूल किया था, उनके टीम में शेड्यूल किया था मैंने कल का लेक्चर. यस सर दिख रहा है. तो ऑडी वालों को दिखेगा कल का वीडियो रिकॉर्डिंग. आज मैंने ऑडी पे किया है तो सॉरी आज मैंने क्रोम पे किया है तो क्रोम वाले को आज के लेक्चर का दिखेगा, ऑडी वाले को नहीं दिखेगा. हाँ देखता है कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. वन सोल्यूशन इज सर क्लासरूम पे अपलोड कर दीजिए. हाँ क्लासरूम पे, बट आई थिंक इट विल टेक सम टाइम बिकॉज इसका रिकॉर्डिंग जो होता है अराउंड 100 MB का होता है एवरी डे. 100 and 150 MB. विल चेक आउट. वैसे कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ इवन व्हाट आई विल डू, मेरा एक यूट्यूब चैनल है. शुड आई पुट इट देयर? यस सर डेफिनेटली. यस सर पुट कर Yes, दीजिए वहाँ पे. तो एवरीवन कैन सी, इवन मोजिला कैन आल्सो. क्या नाम से सर? I forgot. I'm not frequently Link on will the channel. It is only for mathematics. Actually मैंने बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे अपलोड किए हैं मेरे खुद के. But I will do that. मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ. सर स्क्रॉल डाउन. तो I'll do it. नाम क्या चॅनल का? झूम आउट करो ना सर. I think engineering सागर mathematics. बिलरे म्हणून असंच नाव आहे YouTube. हाँ बहुत याद. हाँ सागर विलर ही रहेगा. चेक करो. मैंने आई थिंक M2 के सभी वीडियोस ऑलमोस्ट वहाँ पे अपलोड किए हैं. M1 के भी मैं सभी वीडियोस, ये भी है और मेरे कुछ और भी वीडियोस है मैं करता हुआ. Should I zoom it? Should I Yes, sir. scroll up? I hope this problem is clear. Yes sir. Done with this, everyone? नो सर. सर तुम्ही फ्री फायर खेळता का? काय? हेलो. सर तुम्ही आता फ्री फायर खेळता का सर तुम्ही? अरे नहीं, वो मेरे शायद मेरे बच्चे ने डाला है वहाँ पे. ओके मैं डिलीट कर देता हूँ. ठीक है.
नाही नाही राहू दे, आता विचारलं मी हे करतो. अरे वो मेरे बच्चे ने डाला, वो कुछ भी करता रहता है. क्या डाला है? और शायद एक फ्री फायर चांगलं का आहे ना वीडियो सर. मेरे आम्ही तर चैनल पे PUBG डाला है. खेळतो. हाँ चांगलं आहे ना, आमच्या पबजी खेळतो एवढं काय. ही जस्ट 7, बट वो कुछ वीडियोस देख के वहाँ चलता है पे इसे. शायद उसने कमेंट्री भी की है कुछ, तो ऐसे करो वैसे, आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन दैट, बट आई विल डिलीट इट. यस सर, आई विल डिलीट इट. चैनल पे वेलकम भी कर रहा है वो. आई विल डिलीट इट. सर डोंट डिलीट. नहीं सर, डिलीट मत कीजिए, रह दीजिए. ओके. सर तो राहून द्या फक्त सर, राहून द्या. गेमच नाही खेळत, तो रुबिक्स क्यूब पण सॉल्व करतोय, ते पण चांगलंच आहे की. हाँ रूबिक क्यूब उसको सभी आते हैं, 2x2, 3x3, आई थिंक और कौन सा है, पिरामिड्स होता है, पिरामिड. ही इज वेरी शार्प, नॉट लाइक मी. चलो ओके, शुड आई गो टू द नेक्स्ट पेज? डन विद दिस एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो, we'll do the second problem. If x is equal to u tan v and y is equal to u sec v, then prove that dabba u by dabba x treating y constant, dabba v by dabba x again treating y constant is equal to dabba u by dabba y Now listen here, once you understood the concept, अगर आपको concept समझ में आया, then the thing is very easy. Okay, तो remember whenever you come across this kind of problem, जब भी आप ये देखोगे, इसका मतलब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, मेरे पास u होना चाहिए x y के टर्म में. ओके, और फिर मुझे u को डिफरेंशिएट करना है x से, y को कांस्टेंट रखना है. दिस शुड बी योर टर्मिनोलॉजी. आर यू गेटिंग द थिंग? समझ में आ रहा है क्या आपके दिमाग में आना चाहिए पहले? व्हेन यू थिंक अबाउट दिस पार्ट, व्हेन यू थिंक अबाउट दिस पार्ट, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मुझे u x एंड y का इक्वेशन चाहिए, ऐसा इक्वेशन दिखना चाहिए. ये अगर मिल गया देन आई एम थ्रू. और साइमल्टेनियसली अगर नहीं दिखता है, इफ यू डोंट हैव दिस इक्वेशन, दैट मीन्स एक्चुअली अगर आप प्रॉब्लम देखोगे तो प्रॉब्लम में x, y, u एंड v ये 4 वेरिएबल है. आउट ऑफ दैट अगर मुझे u x एंड y चाहिए, मीन्स मुझे ये v वाला नहीं चाहिए. तो व्हाट यू शुड थिंक, आपने क्या थिंक करना चाहिए कि इस v को मैं कैसे एलिमिनेट करूं. आर यू गेटिंग द आइडिया? सिमिलरली लिसन, जब आप इसके बारे में सोचोगे v x एंड y, व्हाट शुड बी योर थिंकिंग? इसमें थिंकिंग क्या होना चाहिए बता. या यू तो यहाँ एलिमिनेट करना चाहिए. या तो किसको एलिमिनेट करना है? यू को. u को एलिमिनेट करना है. या तो you should eliminate u, and पहले before eliminating u, you should check कि whether you have directly equation in terms of x and y. आपके पास डायरेक्टली अगर x and y का इक्वेशन है तो एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है. अगर आपके पास डायरेक्टली v x and y का इक्वेशन है तो नो नीड टू डू एनीथिंग. बट अगर नहीं है देन यू हैव टू थिंक अबाउट द एलिमिनेशन. फॉर एग्जांपल हियर पहले हम देखते हैं, पहला एक टर्म क्या है हमारा, dabba u by dabba x and y. अभी इसमें आपको चाहिए u इन टर्म्स ऑफ x एंड y. कौन सा नहीं चाहिए? v नहीं चाहिए. बट आपके पास पहले ढूंढो, पहले चेक करो कि u x एंड y का इक्वेशन कोई है क्या जिसमें ऐसे, जिसमें ओनली ये 3 वेरिएबल होने चाहिए. डू वी हैव? देखो इसमें x No, है sir. बट y नहीं है. इसमें u है y बट x नहीं है. ओके, तो देयर इज अ प्रॉब्लम. बेसिकली राइट नाउ एट प्रेजेंट वी डोंट हैव, हमारे पास ऐसा इक्वेशन नहीं है जिसमें u x एंड y है. तो हमें क्या सोचना पड़ेगा, व्हाट यू टू थिंक इज, ये दो इक्वेशन कुछ करके मुझे ये v को गायब करना पड़ेगा. अगर ये v गायब हो गया तो मेरे पास इक्वेशन मिलेगा u x एंड y का. ओके,
नाउ v अगर देखोगे तो v किसके साथ है? इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ है वो, tan एंड v, tan एंड sec, राइट? तो tan एंड sec में एक रिलेशन होता है, डू यू नो दैट? Yes, sir. 1 plus tan square theta. 1 plus tan square Is equal to sec square. is equal to sec square. Or can I say from this that 1 is equal to sec square theta minus 1, sec square theta minus tan square theta. tan square theta. Yes, sir. So आप बोलोगे सर ये कैसे यूजफुल होगा? ये होगा यूजफुल बिकॉज अगर आप ये कर पाओगे sec square theta minus 1 tan square theta, अगर ये टर्म मिल गई आपको, उसका आंसर 1 होगा ना, ऑटोमेटिकली थीटा गायब हो जाएगा. देखो, गेटिंग द थिंग? So what I'm going to do, I'm going to square the second equation, that is y square minus the first square. अगर मैं ऐसे करूंगा तो will it look like u square sec square v minus u square tan square v. Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. बट ये थिंकिंग देखो, ये क्यों किया? वाई स्क्वायर कहाँ से आया, एक्स स्क्वायर कहाँ से आया, वाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग. तो दिस इज द लॉजिक. बिकॉज व्हाट आई वांट सेक्स स्क्वायर, आई वांट माइनस टैन स्क्वायर, ओके, एंड दैट टू गेट इट आई एम डूइंग वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. हे कळालं ना सगळ्यांना नक्की? Yes. Yes, sir. So I can write down from this that y square minus x square is equal to u square times sec square minus Tan square. sec square minus tan square is 1. Can I say this will give me y square minus x square is equal to u square? So am I getting one equation which contains only u, x and y? एक इक्वेशन मिल गया ना मुझे जिसमें खाली x, u and y है, ओके, जिसमें v नहीं है, v एलिमिनेट हो गया. देखो, नाउ आई कैन इजीली फाइंड आउट, देयरफॉर कैन आई फाइंड आउट नाउ डा बाय u बाय डा बाय x ट्रीटिंग y कांस्टेंट. तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस. टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y कांस्टेंट. तो कैसे देखिएगा? कैन यू टेल मी इसका डेरिवेटिव? कैन आई से u स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2u डा बाय u बाय डा बाय x ट्रीटिंग y कांस्टेंट. आर यू गेटिंग दिस थिंग? y स्क्वायर है ना, तो उसका हो गया 2u और फिर डा बाय u बाय डा बाय x, बिकॉज हम x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इज इक्वल टू, इस साइड क्या होगा? y कांस्टेंट है. देखो, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0. इज इट 0 माइनस 2x इंटू डा बाय x बाय डा बाय x, बट ये 1 ही आएगा ना, तो ये नहीं लिखने की जरूरत नहीं है हमें. इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. वो तो 0 तो छोड़ दो, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. तो कैन आई से फ्रॉम दिस दैट Minus x upon root of y square minus x square. डा बाय u बाय डा बाय x ट्रीटिंग y कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस x अपॉन u. सर ये डिफरेंशिएट से एक बार रिपीट कीजिए ना. यार डू इट. लिसन, फिर क्या किया? मुझे ये इक्वेशन मिल गया ना, ये इक्वेशन मिल गया. यहाँ तक तो समझ में आया कि सबको u स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया. हाँ सर. फिर मुझे क्या चाहिए था? अगर क्या चाहिए वो देखो, डा बाय u बाय डा बाय x चाहिए ना मुझे. दैट मीन्स किससे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस इक्वेशन को? मुझे x से, है ना? हाँ सर. तो मैंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट. तो मैंने क्या किया? इसका डेरिवेटिव ले लिया विथ रिस्पेक्ट टू x. सिमिलरली इसका डेरिवेटिव लिया x विथ रिस्पेक्ट टू, इसका डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू x. और इस y u स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? इज इट 2 टाइम्स u, फिर डा बाय u बाय डा बाय x आएगा. यू गेटिंग? पहले 2u लेना पड़ेगा ना मुझे. इज इट ओके? Yes or no? Yes, sir. So u डा बाय u बाय डा बाय x इज इक्वल टू y स्क्वायर का हो गया 0, ये y स्क्वायर का 0 आ जाएगा बिकॉज ये कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का आ जाएगा 2x. फिर मैंने 2 कैंसिल कर दिया और डा बाय u बाय डा बाय x इंटू y लिख दिया.
राइट दिस ये भी निकाल, अभी ये निकाला ना हमने, ये भी निकाल देते हैं। देखो देखो इसके लिए भी क्या चाहिए आपको, कैन यू टेल मी इसके लिए क्या चाहिए आपको? UYX UYX है ना हमारे पास, ये देखो ये है। ओके तो शुड आई कॉल दिस इक्वेशन एज, किसी को मैंने 1 नहीं बोला है ना, इसको ए बोल देता हूँ। ओके ए, तो शुड आई डिफरेंशिएट ए with respect to y now, with respect to y treating x constant। चलो आप बताओ अभी क्या होगा इसका डेरिवेटिव। एक और अगर मैंने y से डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा डेरिवेटिव? y by u। तो ये देखो, ये अगर इस साइड से ही जाते ये 2y हो जाएगा, इज इट? Yes. x कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव। u स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u डाबा u बाय डाबा y आएगा। ट्रीटिंग x कांस्टेंट रख रहे हैं ना, तो x कांस्टेंट लिखा मैंने बाहर, तो ये 2 कैंसिल। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू? y by u dabba u by dabba y। तो डाबा u बाय डाबा y treating x as constant is equal to y by u. Is it y by u? Is it okay everyone? Sir. Just a minute. You just copy it down. One. Okay, have you done this? Yes, लिखा sir. सबने? Yes, sir. आई होप यहाँ तक समझ में आया सबको। हे बघा काय केलं कळालं का? लिसन हियर, ऑल ऑफ यू लिसन हियर। पहला जो टर्म था उसमें u x एंड y दिखाई दे रहा था, तो उसने मुझे क्लिक किया या मुझे बताया कि एक्चुअली जो फोर्थ वाला वेरिएबल है v उसको एलिमिनेट करो। बट फोर्थ वाला जो वेरिएबल था v उसको मैंने देखा ठीक से, तो उसको मुझे दिख रहा था tan v और sec v है। तो आई नो वन रिलेशन बिटवीन tan and sec, that 1 plus tan square theta is sec square theta. So I make use of that equation by taking x square theta minus tan square theta is 1. वही लॉजिक मैंने यहाँ पे लगा दिया। मैंने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर किया माइनस फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर। ऑटोमेटिकली वहाँ पे जब भी वो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर आ जाएगा वो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ना, और वी विल गेट एलिमिनेटेड इन टर्म्स ऑफ y एंड u। फिर इसको डिफरेंशिएट एक बार x से एक बार y से। अभी कैन यू टेल मी ये क्या करना पड़ेगा मुझे? क्या करना पड़ेगा? व्हाट यू थिंक? डाबा v बाय डाबा x y चाहिए ना मुझे, ध्यान दो ना। डाबा v बाय डाबा x है ना। इसके लिए क्या चाहिए बताओ आप? कौन किसके वेरिएबल में चाहिए? X, Y. v x और कौन? y चाहिए। तो हमें एक्चुअली ऐसे दिस इज एक्सपेक्टेड कि v इन टर्म्स ऑफ x y, या एटलीस्ट ये नहीं मिला तो हमें एटलीस्ट एक्सपेक्टेड क्या है कि इन तीनों का एक इक्वेशन मिले। वी नीड अ इक्वेशन व्हिच कंटेन्स v x एंड y।
ओके अगर ये डायरेक्टली मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कुछ करना पड़ेगा. तो डू वी हैव वी एक्स वाई? एक्स वाई Sir, we can divide 1 by 2. वेरी गुड. तो Dividing both equations. यहाँ पे वो जो फोर्थ वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा दो इक्वेशन में से. ऑटोमेटिकली व्हेन यू एलिमिनेट ऑटोमेटिकली एक इक्वेशन मिलेगा जिसमें तीन ही वेरिएबल होंगे. ओके तो क्या है बताओ पहला इक्वेशन क्या है? पण एक तर मी विचार करतो एक तर पीपीएस मी ना बसणार बाबा. तू बसणार आहे म्हणजे ओके कैन एनीवन टेल मी यू कैसे एलिमिनेट करोगे इसमें से? Dividing both एलिमिनेट करना है. डिवाइड आइदर x by y करो या y by x करो. If I do x by y suppose so what I'm going to have u tan v upon u sec v. तो ये u कैंसिल हो जाएगा ना. Are you getting? And what will be this? Can I write down this as sin v upon cos v into cos v? ऊपर आ जाएगा ना cos v. ये कैंसिल. तो will it be simply sin v? From this, can I say v is equal to sin inverse of x by y? Is it correct? Yes, sir. Right? तो मिला क्या हमें इक्वेशन v x and y का इक्वेशन मिल गया. Now can you differentiate now? इसको differentiate करो with respect to x, treating y constant. So I hope you know the derivative of sin inverse of x. Yes, sir. Is it 1 upon under root 1 minus Under x root of 1 minus x upon square. under root of 1 minus x इसका square. क्या हो जाएगा 1 upon under root 1 सर minus वो 1 upon sec x को cos v लिखिए. क्या क्या सॉरी 1 upon sec v को cos v लिखा क्या आपने? हाँ हाँ ये tan भी वैसे ही रखा मैंने और 1 upon sec बोले तो cos हो गया ना वो और फिर cos cos कैंसिल. ओके सर Yes. या और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. आगे इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. वो क्या आएगा? इज इट 1 अपॉन वाई? Yes, sir. Yes, 1 sir. upon y. अंदर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना. कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट डेरिवेटिव है ये. सो व्हाट यू विल हैव दिस विल गिव यू ये स्क्वायर रूट का y निकाल देता हूँ y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन वाई. फिर ये y कैंसिल हो जाएगा. सो कैन आई से द फाइनल आंसर विल बी 1 अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. नहीं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगता है, कुछ लिखना है उसके. वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और व्हाट इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर? यहाँ पे निकाला था देखो कुछ तो हमने. U square. Can I say it is simply 1 upon under root u square or is it simply 1 1 upon upon u. या है आपका थर्ड और कुछ तो बाकी है इक्वेशन का यूज तर इथं आपण हे y ची व्हॅल्यू काढून पण पुट करू शकतो u ची व्हॅल्यू करू शकतो इक्वल टू y अपॉन sec v आणि हाँ, ती x वैसे मध्ये भी पुट कर केली की सकते पण तसंच येते. कर सकते हैं वैसे भी. और लास्ट इज व्हाट अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे इसको रिस्पेक्ट टू y क्या मिलेगा? कैन यू टेल मी? x कांस्टेंट डाबा v by डाबा y treating x constant. Can anyone tell me what it will be? 1 upon under root 1 minus x square y square. Correct? Into क्या आएगा? With respect to y derivative लेना है. x constant है. So is it minus x by y? Minus x by y square? Right. So can I say this is equal to ये y जाएगा ऊपर y square minus x
y. Can we see minus x y into u? अभी देखा ना इसकी वैल्यू u है, u square है, is it? This is your fourth term. Yeah, finally. Therefore, can you tell me what is the LHS? LHS क्या है बताओ? LHS देखो, ये कौन सा है हमारा? ये 1 है हमारा. This is 1. Is it 1 into 3? So can you tell me 1 into 3 क्या आएगा? What is 1? Minus x by u. X by u. And what is 3? देखो 1 upon u. Is the answer? Is it minus x upon u square? And what is RHS? RHS होगा I think 2 into 4 होगा फिर. ये आपका 2 है. Into 4. Answer y by u. 2 is y by u. And 4 जो अभी आया है minus x upon y. So y cancel. Is it minus x by u square only? So can I say LHS is equal to RHS? अरे सर के ऊपर से चला गया क्या? ये समझ में आया? Is it tangential? Yes, sir. नहीं आया? थर्ड और हॅलो सर. नाही कळालं का? परत सांगू? सर आणि तिसरा आणि ते चौथा आहे ना त्याचे डेरिवेटिव सांगाल का परत क्या एकदा? क्या? थर्ड एंड फोर्थ का डेरिवेटिव समझाएंगे क्या फिर से एक बार? थर्ड में क्या किया देखो, आपका जो b आया था, b फोकस ऑन b, b क्या था हमारा? b इज ऑफ x बाई वाई. ओके, ये है हमारा. तो हम क्या कर रहे हैं थर्ड में, डाबा v बाय डाबा x किया हमने और y को कांस्टेंट रखा. तो पहले ये अंदर क्या है देखो ही मत, पहले आप साइन इनवर्स को देखो. और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर. यहाँ पे x आपका एक्स वाई है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. अभी ये हो गया डेरिवेटिव साइन इनवर्स का, इसका डेरिवेटिव हो गया. अभी अंदर देखना है हमें ये वाला टर्म एक्स वाई. अभी इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको x से. बट x से जब डिफरेंशिएट करने जाओगे 1 अपॉन वाई कॉन्स्टेंट होगा, तो उसको मैंने बाहर ले लिया साइड में, और x का डेरिवेटिव 1 ही आएगा ना. दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है, देखो कहाँ पे लिखा है, ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव और ये x अपॉन वाई का डेरिवेटिव. इज इट ओके नाउ? फिर यहाँ पे क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया. देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कैसे लिखोगे? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई ना, अपॉन वाई स्क्वायर. और ये स्क्वायर रूट में से अगर वाई स्क्वायर निकाल दोगे तो वाई हो जाएगा. ये ऊपर आया लिखा देखो ये वाई, और फिर वो कैंसिल कर दिया बाद में मैंने. आर यू गेटिंग? हाँ सर समझा. नीचे भी वही किया है, सेकेंड वाले पार्ट में भी वही किया है, एग्जैक्टली सेम. आई डिड द सेम थिंग. चलो राइट डाउन द सेकेंड पार्ट एवरीवन. सर एग्जाम में एक क्वेश्चन कितने मार्क्स को पूछेंगे? अरे एमसीक्यू एग्जाम हुआ तो 2 ही मार्क को आएंगे. कोई आपको एक ही टर्म पूछी जाएगी. आपको ये लाइक अभी हमने 4 पार्ट निकाले ना, 1 2 3 4, तो कोई भी एक पूछेंगे. आइदर ये वाला पूछेंगे, ये वाला, या ये वाला, या ये वाला, या ये वाला, कोई भी एक. पूरे नहीं पूछेंगे ऑब्वियसली. ओके, आई थिंक यू आर हैविंग योर टीजी मीट राइट नाउ आफ्टर दिस. So we'll stop here. Please finish it off
एंड रिक्वेस्ट टू ऑल सीआरस, जितने जल्दी हो सके मुझे अटेंडेंस भेजो आफ्टर द लेक्चर विद इन सर 10 स्क्रॉल मिनट्स। करो ना। अगर 10 मिनट्स में हुआ तो अच्छी बात होगी, सो दैट आई कैन अपलोड योर अटेंडेंस वेरी सून। अबाउट क्रोम डिवीजन एंड ऑडी डिवीजन, बहुत सारे एब्सेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, दैट इज माइट बी बिकॉज ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर्स। यस सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन एब्सेंट है। फिर भी मैं क्या करूँगा, आपको इस 3 दिनों के अटेंडेंस जो है एब्सेंट नंबर्स में शेयर करता हूँ आपके साथ। ऑडी एंड क्रोम, आई विल शेयर द एब्सेंट नंबर्स। ओके, वो एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दो। बट अगर आप सीरियसली एब्सेंट हो तो एब्सेंट बोलो, अगर आप सीरियसली प्रेजेंट हो गए बाई चांस आइदर फॉर ऑनलाइन और ऑफलाइन, मुझे बता दो। आई विल मेक इट पी ओवर देयर। ओके, आई मार्क यू प्रेजेंट। बट देर आर, आई थिंक देर आर सम कन्फ्यूजन, थोड़े से ऑफलाइन ऑनलाइन की वजह से एब्सेंट ज़्यादा मार्क हो रहे हैं। It might be the problem with Mozilla also. Mozilla के लिए भी ये सेम प्रॉब्लम हो सकता है। एक बार आप दुर्गेश सर के साथ भी बात करो, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग दैट अटेंडेंस। आई एम गिविंग योर अटेंडेंस टू दुर्गेश सर एंड सर विल फील इट। ओके, बट रिक्वेस्ट 101, 847 and 1157 to please send me the attendance as early as possible, so I can Yes. upload. चलो, should we stop here? सर इसका पहला वाला जो क्वेश्चन था वो दिखाए ना एक बार। क्या क्या? इसका पहले वाला जो क्वेश्चन था ना वो दिखाए ना एक बार। एक मिनट, ये वाला। हाँ सर, नीचे सर, नीचे वाला पार्ट। एनी डाउट? नो सर, वो स्क्रीनशॉट लेना सर, लिखा नहीं था सर मैंने। ओके, should I stop here? Yes, sir. चलो, please share the attendance. CR, please. Okay, चलो, bye.